इट इज़ अ वेरी हाई प्रेशर एग्ज़ाम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत प्रेशर होता है पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ जनवरी, आपका जब फरवरी में एग्ज़ाम है। व्हाट टाइम इज़ इनफ, इट रियली डिपेंड्स कि आप तैयारी कैसे करते हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या है। होगा ये जब आपको इस तरह पेपर दे देंगे ना यूं करके, तो आपको पहले नज़र नहीं आता पेपर, ठीक है, तो उसको कोई बात नहीं, आपको 15-20 सेकंड बाद नज़र आ जाते हैं। जनवरी में आपको तकरीबन आप जो चीज़ रिवाइज करेंगे, जो चीज़ आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आता। 10-15 मिनट पहले बैठने से ना इट हेल्प्स यू टू लॉक इन, लाइक यू वुड रियलाइज़ कि ओके व्हाट यू आर अबाउट टू डू, और फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी आपको देना शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन कंटिन्यूएशन टू विद आवर प्रीवियस एपिसोड, आज दुरहान और मैं हम आपके कुछ और कमेंट्स डिस्कस करेंगे। So we'll be starting with the comments. I'll read the first comment, Turhan. Right. So go ahead. Pinky Paru U4I asks, I will take exam 2027 when I should join NOAA. Kindly, what is enough time for complete syllabus? That is such a subjective question, I would say. When you should be joining an academy solely depends on what works for you. आई वुड से आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। इफ़ you are more of a self-study kind of person, I would say you can take a few months and prepare the subjects by yourself and then join the academy. Or if you work better with guidance, which NOAA offers brilliant guidance, mashallah, then you can start right now. You can join the academy right now. As far as what is the enough time for completion of syllabus? Since it's to 2026 right now, you'll be taking the 2027 attempt. A whole year is more than enough for your preparation. What do you think, Zurhan? I totally agree, Zoya. Again, what time is enough, it really depends कि आप तैयारी कैसे करते हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या है। अब ये चीज़ें जो है ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये चीज़ आपने खुद गेज करनी है। अगर आपने अपना नॉलेज गेज करना है, तो आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप फैसला कर लें कि हाउ मच टाइम यू नीड टू प्रिपेयर। Exactly. एंड सेकंड जो कमेंट है वो है मोहम्मद शाहरुख माहिर की तरफ से। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और वो किस पोजीशन में है, ये कैसे मालूम करेंगे? इसका मालूम करने का बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप या तो पास्ट पेपर्स देख लें और उसको अटेम्प्ट कर लें, या आप जैसे नोवा में टेस्ट सीरीज ऑफर होता है वगैरह, आप उसको ज्वाइन करें, आप वहाँ पे अटेम्प्ट करें, आप देखें कि आप टाइम कंस्ट्रेंट के साथ कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। सो आई थिंक दैट्स द वे टू टेस्ट। I agree. Test series, mocks, attempting the past papers, and getting evaluations done. I think that is a very good way of assessing whether you are prepared for the exam or not. And more or less, you do get it by yourself also. जैसे तुरहान ने कहा, अगर आप past papers के questions को देख के खुद अपना analysis करने की कोशिश करें कि how well you are attempting those questions, if those questions are given to you in the exam, would you be able to give a good answer to it or not? तो ये आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद करना आनी चाहिए, एंड द मोर यू डू इट द बेटर यू आर गोइंग टू गेट एट इट. So self-assessment is of prime importance, and then you can always attempt test series, take mocks from an academy, or take mentorship, and you will be good to go. The next question is from Talha Nazir M3J. Please tell us about national and international magazines. We have discussed this in another video. There is a whole video where we've talked about the sources, the resources, the books, including the magazines. It's in the pipeline, so stay connected to the channel to make sure you are aware of when that video is posted. उसके अलावा I think for international magazine, what I read the most was The Economist. That was a very good magazine in terms of its writing and its content. It was very relevant to the current affairs, still is. So that is a good international magazine that I read. What about you? मैंने आई रेड रैंड के इंटरनेशनल उसके मैगजीन्स पढ़े थे, वो वॉर के और उससे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर करता है। लोकली हिलाल इज़ अ गुड, लेकिन अगेन इसके पाइपलाइन में वीडियो आ रही है, स्टे ट्यून, एंड उसमें फिर डिटेल में हमने मल्टीपल नेम्स, उसके अंदर क्या उन चैनल्स और मैगजीन्स में है क्या, वो फिर डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू इन चूजिंग द मैगजीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब
अल्हम्दुलिल्लाह 2341 ने किया हुआ है, एंड दैट इज कैन वी मेक मैप एटसेट्रा इन एसे राइटिंग, प्लीज टेल। अच्छा, एसे राइटिंग में अगेन इट्स एसे राइटिंग, इस पे मैप्स, टेबल्स, अननेसेसरी स्पेसेस और इस तरह कुछ भी नहीं करना। इसमें ये ना हो कि आपने बीच गैप में कोटेशंस लिखो, नो, आपने प्रॉपर एक ऐसे स्टाइल स्ट्रक्चर जिसके पैरास मूव करते हैं, यू आर सपोज टू, क्योंकि ये ऐसे का एग्जाम है, इसकी प्रेजेंटेशन हैज टू लुक लाइक अ ऐसे। तो ये है, आई मीन आई वुड, यू आई थिंक यू वुड एग्री विद 100%. A map is not needed in an essay. Essay is a creative writing ki exercise. It's a literary exercise. You can make maps, diagrams in park affairs, current affairs, journal science में diagrams चाहिए. Essay में your paper should just consist of the outline and then your essay, the body of the essay. उसमें you should have paragraphs. आप paragraphs में indentations दे सकते हैं to make sure that the starting of a paragraph is highlighted कि यहाँ से आपका paragraph start हो रहा है. But maps, diagrams, tables, as Tarhan has said, these are not needed इनके इससे आपका पूरा don't make maps. Just pure English should be in your essay. That's it. Okay, so our next question comes from Talha Nazir M3J, who is asking compulsory subjects के sources बता दें. I think the most appropriate list of resources can be found on FPSC's own website. They have given the entire reference books that are needed for each subject, compulsory and optional. On reference books के अलावा we have made another video where we are discussing the sources for the preparation that will be uploaded very soon inshallah, so feel free to wait for that. बाकी ऐसे मतलब एक तो कंपल्सरी सब्जेक्ट जो दो हैं आपके, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, नेचुरली यू कैन चूज अ न्यूज़पेपर एज अ बिगिनिंग, और एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स जिससे जोया ने बताया, एंड ऑफ कोर्स जो वी हैव ए एंटायर वीडियो ऑन दिस कि क्या सोर्सेज हम कंपल्सरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेट फॉर दैट वीडियो और इंशाल्लाह इट विल आंसर योर क्वेश्चंस। The next question is by Irtiza Shehbaz. Interesting take. Would love to hear about exam pressure handling. Acha, exam pressure handling is a good question and a good point because this exam is not fun. So Irtiza, it's a good question. Let me just set the stage. You're going to be preparing for at least 5 to 8 months, depending on the type of a person you are. तो 5 to 8 months ऑफ योर लाइफ जब आप कर लेते हैं तो फिर आप काफ़ी परेशान होते हैं बाय जनवरी, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होता है आपका। जनवरी में आपको तकरीबन आप जो चीज़ रिवाइज़ करेंगे, जो चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आता। होता है कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस लेवल्स आपके मैक्स पे होते हैं, तो आप तो मगर रेस्ट एश्योर्ड जो आप पढ़े एक्चुअली आपको याद होता है, लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा, तो आपने उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी उस बात की। अच्छा, एग्जाम हॉल में दिस ईयर 2026 के लिए इट्स 1 पेपर पर डे कंपल्सरी के लिए, व्हेन वी वर गिविंग इट 2 पेपर्स पर डे था। और एक चीज़ समझ रहे हैं, आपका भी 2 पेपर्स पर डे होगा जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे मूव करेंगे। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जोया फिर अपनी एक्सपीरियंस बता देगी, एंड वहाँ से यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ वी वर हैंडलिंग इट। अब होता ही है जब आप नेचुरली एंटर होते हैं, इट्स यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, तो ऐसे ही इंसान का थोड़ा सा दिल में टेंशन होती है और आप जाते हैं हॉल में बैठते हैं। ऐसे एग्जाम नेचुरली आपको पता है यार ये पहला पेपर भी है और ये सबसे भयानक पेपर है, ठीक है ना, तो यू डू फील इट, तो दुआ वगैरह पढ़ा करें तो होपफुली आप थोड़े से उससे नर्व डाउन होता है, ईज अप होते हैं, सॉरी। और होगा ये जब आपको इस तरह पेपर दे देंगे ना यूं करके, तो आपको पहले नज़र नहीं आता पेपर, ठीक है, तो उसको कोई बात नहीं, आपको 15-20 सेकंड बाद नज़र आ जाते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि आपके इर्द-गिर्द कुछ 15-20 लोग उठ के एग्ज़ाम हॉल छोड़ देते हैं। उससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उसके ऊपर आपने खुश होना है। बिकॉज़ नेचुरली जब वो उठ के जाता है, आप कहते हैं पता नहीं क्या ही लिखा है इसमें कि ये उठ के चले गए, लेकिन आप ये सोचें कि चलो शुक्र है मुझे तो आता है, ये तो चले गए। आपने ये समझ के करना है, ठीक है? द फर्स्ट पेपर इज़ द हार्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हैंडलिंग। एक दफ़ा आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता यू गेट यूज्ड टू इट। हमारा ये था कि इट वाज़ 2 पेपर्स अ डे, तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम तक हमें समझ आ ही गई है कि हमारे साथ अब हो क्या रहा है। बाय द सेकंड पेपर 6 घंटे और हमारे लग गए। बाय द थर्ड डे 6 घंटे और 3 आवर्स है।
उसकी बीच में हल्का सा सांस लेने का मौका मिलता है एंड तो 3-4 डेज़ में आपको लगता है हफ्ते 2 गुजर गए आपके एग्ज़ाम में, लेकिन इट्स टफ। लेकिन हाँ, यू द फर्स्ट डे वाला जो है ना, थोड़े दुआ वगैरह पढ़ा करें, दुरूद वगैरह पढ़े जब आप बैठे हो थोड़ा-सा, जो आपका टाइम होता है ना यू एंटर द एग्ज़ाम अबाउट एन आवर बिफोर 40 मिनट्स, इट डिपेंड करता है आप किस पेपर कब आते हैं। शुरू में बैठ जाए दैट्स गुड। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज़ शुरू में जब आप बैठते हैं तो आपका जो फर्स्ट 10-15 मिनट्स है वो जब निकल जाए ना एक दफ़ा, तो न्यू एनवायरनमेंट में आप थोड़ा-सा सेटल डाउन कर जाते हैं। आई थिंक पहले थोड़ा-सा पहले बैठा करें स्पेशली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम, तो वो थोड़ा-सा आप यू विल फील बेटर। 10-15 मिनट पहले बैठने से ना इट हेल्प्स यू टू लॉक इन। लाइक यू वुड रियलाइज़ कि ओके व्हाट यू आर अबाउट टू डू, और फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स भी आपको देना शुरू कर देगी। इट इज़ अ वेरी हाई प्रेशर एग्ज़ाम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत प्रेशर होता है पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ जनवरी। आपका जब फरवरी में एग्ज़ाम है, आपको लग रहा होगा यू आर नॉट रेडी टू सिट इन द एग्ज़ाम, यू डू नॉट नो इनफ। दैट इज़ व्हेन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क दैट यू पुट इन। और मैंने जो अपने आप को बार-बार एक बात कही थी, इट वाज़ माइंड ओवर मैटर। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ calm। And a good friend of mine, they told me this, that you have to put a bubble around you. आपने अपने आप को isolate कर लेना है from everything else that is happening around you. It is just you and the exam for the next 6 days or for the next 12 days, जितना भी अब duration बन जाता है। वकील है इधर और नहीं ये मैं इस मैं यूँ मैं कैसे मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, ये चीज़ मैं यूँ करके मैं ये क्या करूँगा तो आप छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं अपनी अटेंशन लानी, और आपके कंपेटिटर्स आपके अराउंड क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, नो नीड टू लिसन टू दोज़, इट्स जस्ट यू एंड द एग्ज़ाम। तो जब आप इन 2 चीज़ों पे जस्ट सिर्फ फोकस करोगे तो द प्रेशर विल रिड्यूस इटसेल्फ। बाकी डू द थिंग्स दैट हेल्प यू डील विद प्रेशर। For me, it was always making dua, it was praying, I used to do that, and writing helped me a lot, journaling helped me a lot. So it is a very personal thing. You need to know what works for you in pressure, but you have to focus on the goal. The kahan एग्जैक्टली। और वन पॉइंट आई वुड ऐड इज के स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम जब एक्स्ट्रा शीट्स कोई मांगे, उसका मतलब रेस्ट अश्योर्ड जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आपका एग्जामिनर काफ़ी एक प्रोफेशनल बंदा या वो है बड़ा प्रोफेशनल आगे वो आपके क्वालिटी देख रहा है कंटेंट का। सो अगर इर्द गिर्द कोई पेपर एक्स्ट्रा मांगे तो कोई उस पर वो नहीं कर रहा है। हाँ आंखें ये बंद होनी चाहिए एग्जैक्टली। हाँ regarding what other people are doing, सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना है, that is where you are going, that is it. And I think with regarding exam pressure handling, again we have another video coming. Sir Osama and Sir Hilal have made another video. So for a detailed analysis on handling exam pressure, please make sure to check out that video. And that will be all from our side for now. Inshallah, we will see you guys in another video. अल्लाह हाफिज़।